students of this Sharma in front of you again, taking a new topic of the chapter manufacturing industries from geography. Student, in this chapter we have discussed about the manufacturing, its importance, classification, agro-based industries. In last video we have discussed about the jute, textile and sugar industry. Now I am here taking a new topic, that is the mineral based industries. It means in this video we will come to know about the mineral based industry. Firstly, what are mineral based industries? So we come back that in the last video we have discussed about agro-based. Agro-based means industry that got the mineral from the raw material from the agriculture is known as the agro-based industry. Likewise, the mineral based industry, it means generally simple way we may say that the industries which get the raw material from minerals are known as the mineral based industries, or other definition we may say industries which use raw material. It means which use raw material. Raw material means minerals and the metals. यानी कि इंडस्ट्री विच यूज मिनरल एंड मेटल्स एज ए रॉ मटेरियल आर नोन एज द mineral based industries. It is clear. So and these are known the backbone of India. It means we can backbone like our backbone, our body stands on that also. So backbone, it is known because other industries are also depend also. So like iron steel industry, electronic industry. So firstly we are going to discuss first mineral based industries, that is the iron and steel industry. Iron steel industries की अगर हम बात करें, so according to classification of industries we have already discussed, that is the heavy industries, because the raw material and the finished product is also heavy, so it is known as the heavy. Generally हैवी इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल भी हैवी है और फिनिश प्रोडक्ट भी इसका हैवी होता है. सो इट इज़ बेसिक और की इंडस्ट्री. आयरन स्टील इंडस्ट्री, यू नो वेरी वेल दैट आयरन एंड स्टील दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे यूजेस अभी डिस्कस करेंगे. यू मे सी हियर ऑन योर स्क्रीन दैट ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव मीन्स रेल के इंजन, रेल ट्रैक, शिप बिल्डिंग, मशीन बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, heavy transport. Clear? Heavy transport means generally mostly plants set up nearby the transport system. So these are the on your screen that is told by me, these are the equipments or the other thing that are made from the iron and steel. Now it is basic or key industries. बच्चा पूछ रहा है what is meant by this basic और key, you know key जिससे ताला खुलता है. सो जनरली कि ये बेसिक इंडस्ट्रीज क्यों कही जाती है? इट मीन्स क्यों? बिकॉज इट लेज फाउंडेशन ऑफ अदर इंडस्ट्री. दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं जिनका नाम मैंने भी आपको बताया, ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव, रेल ट्रैक, शिप बिल्डिंग, इट लेज द इट इज द फाउंडेशन, और वी कैन से दैट दीज इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन. देखिए ऑटोमोबाइल्स बनेंगे, इंजन बनेंगे तो आयरन स्टील के बनेंगे, लोकोमोटिव है, रेल इंजन उसमें चाहिए, ट्रैक्स बनाने के लिए हमें लोहा चाहिए, शिप बिल्डिंग के लिए चाहिए, सो या मशीनरी बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, मशीन बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए. सो दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन. सो यानी कि अदर इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज है दे डिपेंड ऑन दिस आल्सो. दूसरी मशीनरी, यू नो वेरी वेल इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज मशीनरी आर यूज. प्रोडक्शन होता है बेटा मशीनरी से, और मशीनरी बनती किसकी है? मशीनरी इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द iron and steel. So every industry depend on this. Production and consumption of iron. और दूसरी चीज इसमें मोर पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, इट लेज फाउंडेशन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज. ऑल इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी. इट इज यूज टू मेक द ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव, रेल ट्रैक, शिप बिल्डिंग एटसेट्रा. एंड थर्ड वन, अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इज द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री. यानी कि अगर एक देश का हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट देखना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है, तो कहीं ना कहीं दैट इज फाइंड आउट
अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कि हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम कितना उसका योग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इट इज़ द मेजर फैक्टर टू डिटरमाइन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अभी ऑलरेडी यू टोल्ड इन फर्स्ट पॉइंट दैट ऑल इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन द आयरन स्टील। तो आयरन का जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मशीनरी बन रही है, तो आयरन स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है, हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, वी आर मैन्युफैक्चरिंग एट ए लार्ज स्केल। सो इट इज़ नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री लाइक दिस आल्सो। आई होप यू आर क्लियर। और बात करें अगर इसकी हम फर्स्ट प्लांट की, तो जो फर्स्ट प्लांट था हमारा वो सेटअप हुआ था राउरकेला में, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के कोलैबोरेशन से 1960 में। सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे, और भिलाई स्टील प्लांट जो है लार्जेस्ट प्लांट है इन इंडिया। इन 1955 इट वॉज सेटअप। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स, तो इसमें देखिए तीन चीज़ होती है मेन। देर आर द थ्री मिनरल्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मेक द आयरन स्टील: आयरन और कॉकिंग कॉयल एंड लाइमस्टोन। इनका रेशियो होता है 4, 2 and 1, यानी कि 4 आयरन तो कुकिंग कॉयल, और फर्स्ट वन होता है आपका लाइमस्टोन। और हार्ड करने के लिए टू मेक द हार्ड स्टील, मैग्नीज दैट इज द हार्ड दैट इज यूज टू मेक दिस आल्सो। और अगर हम बात करें कि सेक्टर्स क्या है हमारा जनरली, तो मोस्टली इंडस्ट्रीज आर इन द पब्लिक सेक्टर, मतलब यूनिट्स जो हैं आपकी पब्लिक सेक्टर में। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि वाई आर द मोस्ट ऑफ द पब्लिक। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट in industries, iron steel industries are not in the private sector also, we will come to know later. Most of the industries in public sector. Why? बच्चा फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्लियर। सो दैट इज नॉट पॉसिबल बाय एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट और नॉट पॉसिबल बाय ए प्राइवेट पर्सन। So mostly industries are set up by the government also. Long gestation period, मतलब इसका जो डेवलपमेंट पीरियड है दैट इज़ लॉन्ग, काफ़ी टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में। थर्ड वन आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस आल्सो। सो वी कैन से मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर इन द, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर इन द पब्लिक सेक्टर। और अगर हम स्टील इन्वेंटेड की बात करें तो अराउंड 400 BC। इट इज़ नॉट इन द सिलेबस बट ओनली फॉर नॉलेज। नेक्स्ट वन इज हियर। अब आता है बेटा, नाउ वी विल कम टू नो दैट कि इन इंडिया वेयर आर द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। सो ऑन योर स्क्रीन यू मे सी आई हैव रिटन हियर आल्सो दैट मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैप आपने देखा होगा ऑलरेडी 8th क्लास में, 9th क्लास में, यू हैव सीन छोटा नागपुर प्लेटू। ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये छोटा नागपुर प्लेटू आपका जो छत्तीसगढ़, एक फिजिकल फीचर है इंडिया का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका जो है वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द छोटा नागपुर। सो मोस्टली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड देयर, क्लियर। मोस्टली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, और वी कैन से मोस्ट आयरन स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड देयर आल्सो। रीजन बिहाइंड दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, जब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए, वो चाहिए हमारा रॉ मटेरियल। इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वी हैव डिस्कस, चाहे वेदर जूट टेक्सटाइल, वेदर कॉटन टेक्सटाइल, वेदर शुगर इंडस्ट्रीज, वी हैव डिस्कस। सो छोटा नागपुर प्लेटू, दिस इज द रीजन जहाँ पर आपके प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा, कि मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू। क्वेश्चन इज आस्किंग हियर अगेन, you will miss, sir, what are the reasons behind this, and I want to say this is the important question for the board exam many time. So firstly proximity of raw material, raw material जो इसको चाहिए, clear, coal, iron ore, so that are easily available in this area. कोयल चाहिए एनर्जी के लिए, और आपका जो आयरन ओर है, आयरन ओर में कच्चा लोहा जिसको हम बनते हैं, एक चैप्टर था हमारा लास्ट, मिनरल एंड रिसोर्सेज, that is not for the 2020-21 session, but in 8th class already I have discussed iron ore, जिसको हम कहते हैं कच्चा लोहा, और मतलब that is the mineral from which we get the mineral also, metals also. So coal और iron, क्योंकि ये जो एरिया है आपका इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, छोटा नागपुर प्लेटू
I have written on your screen also area Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, Jharkhand. This is the main areas of the production of the iron ore as well as the coal also. So coal is used for the energy and raw material is easily available. First region is बेटा this is. Second है अब हमें चाहिए लेबर, वही फैक्टर्स है सबके. So these areas are the high density of population. So easily labor, skilled, unskilled, both type of labor easily available. Cheap labor is also available along with skilled and unskilled. दूसरी बात करें पावर, तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स भी लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट्स भी है, फ्रॉम देयर दे गेट द एनर्जी आल्सो. दूसरी बात करें अगर हम नेक्स्ट मार्केट इज इम्पोर्टेंट. सो नियर बाई एडजॉइनिंग एरिया, these areas also and nearby areas also, these are ready for the production or the manufactured, likewise the iron steel that is used. So these area lot of market is there and this is easily available. मतलब हम कह रहे हैं कि मार्केट है और वो वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा अगर हम कह रहे हैं रोड रेलवेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, तो ये भी है एक लार्ज स्केल. और मोस्टली जो आपके आयरन स्टील प्लांट है, क्योंकि ये हैवी मटेरियल्स हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो मोस्टली आयरन स्टील प्लांट्स आर नियर बाई लोकेटेड द रेलवे स्टेशंस. क्लियर, क्योंकि उनको आसानी से वो ले जाते हैं. साथ साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये आपका पोर्ट एरिया है. सो ईजिली दे कैन सेंड, दे कैन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मशीनरी, रॉ मटेरियल ईजिली टू द अदर कंट्रीज और फ्रॉम द अदर कंट्रीज. कोयल माइंस की बात करें, रानीगंज, बोकारो, दिस इज द एरिया. सो वी कैन से these are the regions that why the most of the iron steel plants of India located in Chota Nagpur plateau. Proximity raw material है, coal iron आसानी से मिलता है, labor is easily available, energy power source is easily available, market is ready, clear, और आपका road transport is ready, ports, water transport, every type of transport is ready. अब बात करें बेटा हम प्रोडक्शन ऑफ स्टील. प्रोडक्शन ऑफ स्टील की अगर हम बात करें तो 2016 देखिए, प्रोडक्शन ऑफ स्टील चाइना इज गॉट द फर्स्ट पोजीशन. 2017 का डाटा है, 831.7 मिलियन टन था. जापान का 104.7 मिलियन टन, इंडिया 101.4 मिलियन टन एंड यूएसए 81.6 मिलियन टन. सो वी rank the third in this also in the world. China, Japan and after that India. अगर हम बात करें तो हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया. इन योर स्क्रीन यू मे सी हियर आल्सो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन भद्रावती इन कर्नाटका, एट भद्रावती इन कर्नाटका. ये एक एक्सेप्शन है. किसका? ये एक एक्सेप्शन है कि ये कर्नाटका में जो कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया से काफ़ी दूर है और एक आयरन स्टील प्लांट है. जो सरस्वती प्रोजेक्ट है वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से एनर्जी रिसोर्स करता है. ये एक एक्सेप्शन है आयरन स्टील प्लांट का. रीज़न फॉर दिस कि जनरली मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील प्लांट्स लोकेटेड नियर बाय द रॉ मटेरियल. सो बात करें हम प्रोडक्शन हमारे यहाँ काफ़ी हो रहा है, थर्ड रैंक है. चाइना, जापान, इंडिया है. और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पंज आयरन हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. स्पंज आयरन जनरली जिसके अंदर पोरस होते हैं, पूरी तरह से मतलब वो ठोस नहीं होता, कच्चा लोहा भी जिसको हम कह सकते हैं, होल्स वाला पोरस आयरन, सॉरी स्पंज आयरन वी आर प्रोड्यूसिंग. अब बात करें हम कि देखिए ऑलरेडी इन दिस पॉइंट व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक और की इंडस्ट्रीज नॉन आयरन स्टील, कि कंजप्शन and production is the measurement for the development. We are producing at a large scale, third rank, but the consumption per capita consumption PCC is only 32 kg. यानी कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी, दूसरा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी आपको पता है उस लेवल पे नहीं है जो चाइना में है. चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे आगे. तो यहाँ पे जो पर कैपिटा कंज्यूमशन है दैट इज़ ओनली 32 kg, यानी कि एक व्यक्ति जो लगभग 32 किलो जो है वो आपका यूज़ कर रहा है. क्लियर. सो दिस वीडियो इज एंडेड हियर. नेक्स्ट वीडियो वी विल कम टू अबाउट द आयरन स्टील प्लांट, मिनी स्टील प्लांट, इंटीग्रेटेड एंड द प्रॉब्लम्स. ओके, थैंक यू बेटा.